Anuj, screen is not visible. Anuj sir, if you have any problem, can share with me. We can resolve it. Anuj sir, Anuj Badoria sir. Anuj, if you are not able to share, Gautam, please share the PPT. Yeah, please share with me. I will share with. I will share. No issue. Just click on the present now button and share your PPT. Anuj, please stop share kar de और Gautam share kar. Gautam, please unmute yourself. You are not speaking also. Just wasting time for everybody. Gautam, am I audible? Sir, is can Hello. Yes. तो you should response. मैं कब से बोल रहा हूँ? Please response. Yes, please start, Gautam. Sir, can we start? Yeah, just waiting for Gautam. Gautam, please start. Okay. Yes, sir. Hello and very good evening to all of you. A very warm welcome to absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that brings together so many special peoples like you. And before starting, first of all, we introduce our team members and all the authorities of the thanking all the authorities of the college who make possible this wonderful season. Let me introduce first my team members. हमारे साथ हमारे रीजनल टेक्निकल हेड हमारे रिंदम आचार्य सर जी हैं. इसके साथ ही साथ येसो हमारे अनुज जी हैं, वाहिद भाई हैं एंड सबसे पहले इसके साथ ही मैं अपना परिचय देता हूँ. हमारा नाम गौतम हुआ. इसके साथ साथ जैसा कि हमने बताया हमारे साथ हमारे रीजनल टेक्निकल हेड हैं जो आपको
बहुत सारी जानकारी देंगे और साथ ही साथ सीमेंट कंपनियों से जुड़ी हर एक चीज हम लोग आज साझा करेंगे इस सीरीज के जरिए, डालमिया लेक्चर सीरीज के जरिए। और बिफोर प्रोसीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल डालमिया परिवार की तरफ से मैं कॉलेज अथॉरिटी का धन्यवाद करना चाहूंगा, कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर कुमार सुरेंद्र सर जी का एंड कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र जी का, और साथ ही साथ उन तमाम सभी कॉलेज के अथॉरिटीज और बॉडीज का जिन्होंने इस सेशन को कामयाब होने में सहयोग दिया है। और समय को ज़ाया ना करते हुए हम प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप इस वेब सीरीज में हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें डालमिया ग्रुप प्रोफाइल, रोल ऑफ सिविल इंजीनियर्स इन सीमेंट मार्केटिंग इंडस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री सिनेरियो, इसके साथ तमाम आप देख पा रहे हैं बीआईएस स्पेसिफिकेशन, कंक्रीट एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिफोर प्रोसीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डालमिया ग्रुप प्रोफाइल। आप सभी देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, डालमिया ग्रुप founded in 1935 by Sri Jayadayalji Dalmia, and the cement division of the Dalmia Cement was established in 1939. Before Dalmia Group had established 4 cement plants in pre-independence of year. स्वतंत्रता के पहले हमारे पास 4 प्लांट थे, जिसमें 2 हमारे पार्टीशन में चले गए। The group presently has measured presence in south, east, and northeast. In east operates through integrated plants in Odisha and a grinding units in Cuttack, Medinapur, and Bokaro, Bhabua. 2 cements plants we acquired, Adhunik Cements and Calcum Cements in northeast, and new addition in JP Bokaro, Jharkhand, and NCW at Bhabua, Bihar. We are ranked 4th largest group in Indian cement industry. This is our milestone. Start from 1939 and we reached at 2017 acquisition of KIL plants in Bihar with production capacity of 1.3 million ton, and Morrigan in Assam total capacity over 27 million ton per annum in nowadays. This is our rich heritage that we are established in 1939. And we are reached more than 75 years of doing business in India, and this is our advertisement, and which is republished in 16th of Independence Day by Times of India. Not in the cement industry, Dalmia Group has a really vital presence in other cement in other industries like sugar, refractories, and power. This is our prize to serve the India as a different cement manufacturer, different type of cement manufacturer. We produce railway sleeper cement, air strip cement, and oil cement, sulfate resistant cement. This is our varieties of cement we produce and serve India. This is our pan-India presence, and in map we show our footprints. We started from OCL India 6.7 million ton, and then acquire lots of plants, and now we reach to 27 million ton. And upcoming greenfields is our greenfield project for more than 12.5 million ton per annum capacity, which is in HP, MP, and Rajasthan and Meghalaya. This is our presence in 23rd states, which we serve and sell cements. This is our highest. We are the highest slag cement producer in India. As you see in the slides, OPC 96 to 98% कुछ ये परसेंटेज है जो सीमेंट बनाने के लिए OPC, PPC और PSC ये आप सभी पढ़ते होंगे अपने सीमेंट बिल्डिंग्स मटेरियल में। ये सीमेंट के टाइप्स हैं, OPC, PPC और PSC, इनमें के इंग्रेडिएंट्स के परसेंटेज है कि कितने परसेंटेज इंग्रेडिएंट्स किसमें होते हैं। जैसा कि आप OPC में देख पा रहे हैं 96 to 98% क्लिंकर होते हैं और 2 to 4% जिप्सम होते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें PPC की, तो इसमें 15 to 35% फ्लाईएस होते हैं, 80 to 60% क्लिंकर और 2 to 4% जिप्सम। PSC की अगर बात करें तो 25 to 70% स्लैग होता है और 70 to 25% क्लिंकर होता है, 2 to 4% जिप्सम होता है। तो वी आर द हाईएस्ट स्लैग सीमेंट प्रोड्यूसर इन इंडिया। Lowest CO2 footage in a world,
CO2 जो इमिशंस होते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें हर कंपनी की जो परसेंटेज होती है उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो डालमिया बहुत बेहतर तरीके से अपने एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करता है। अपने प्लांट्स को उस हिसाब से हमने अपने टेक्नोलॉजी को इनहांस कर लिया है कि हम लेस CO2 फुटेज दे पाते हैं, फुटप्रिंट दे पाते हैं। इसके साथ साथ अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली की बात करें तो CO2 इमिशन हमारी कम हो रही है। स्लैग डिस्पोजल जो होता था उसको हम रीयूटिलाइज कर रहे हैं, लाइन स्टोर प्रिवेंशन कर रहे हैं। ये सारी टेक्निकल स्टेबिलिटी के कारण ही हो रहा है, जो हमारे एनवायरमेंट को भी काफी हद तक सहयोग करता है। देश जोड़े दिल जोड़े ये कोची मेट्रो की है, जिसको बनाने में हम लोग डालमिया सीमेंट कंपनी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ साथ हमारे चेन्नई मेट्रो में भी बहुत योगदान रहा है डालमिया सीमेंट का। चेन्नई मेट्रो को बनाने में, उसके कंस्ट्रक्शन में हमारे सीमेंट की यूज हुई है। ये सारे कुछ हमारे स्ट्रक्चर हैं हमारे सीमेंट से बने हुए। ये चेन्नई मेट्रो 401 किलोमीटर की बनी थी हुई है। साथ ही साथ धौला सदिया ब्रिज की अगर बात करें, जिसकी लेंथ 9.15 किलोमीटर है और 2017 में इसकी ओपनिंग हुई थी। इसके साथ साथ कुछ प्रेस्टिजियस स्ट्रक्चर हैं जो हमारे सीमेंट द्वारा बने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हीराकुंड डैम, NTPC, दम पोच, नालको, महानदी ब्रिज, विद्यासागर सेतु, ये सारे हमारे सीमेंट से बने हुए ब्रिजेस हैं और स्ट्रक्चर्स हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग सीमेंट कंपनी का भी अवार्ड हमें मिल चुका है 2016 में, और आज के समय में हम लार्जेस्ट कैटेगरी में आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, भारतीय मार्केट में। डालमिया सीमेंट 4th लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, साथ ही साथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्लैग सीमेंट भी है, जैसे कि आप सभी प्रीवियस स्लाइड्स पे देख चुके हैं। इसके साथ साथ हम सुपीरियर क्वालिटीज के सीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, रेलवे स्लीपर स्ट्रिप्स, ऑयल वेल, ये सारे हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। इसके साथ साथ 3 ब्रांड पोर्टफोलियो है हमारे। आप जो 2 बैग हमारे देख पा रहे हैं, ये हमारे बेस्ट प्रोडक्ट हैं, एक डालमिया और एक हमारा ढलाई स्पेशल DSP बोल के है। आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि सीमेंट इंडस्ट्री में टेक्निकल एक्सपर्टाइज क्यों चाहिए, जो हमारे बॉस आपसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बॉस, Thank you, Gautam. Before I start, I'd like to thank Dr. Vijender ji to organize such a fantastic session with almost 100 students. And we have been associated with Bakhtiyarpur College of Engineering from last 2 years, even more than that. So the students are also associated with us. Maybe they are accustomed with the name Dalmia. So thank you, students, to all of you for joining us. So before we go ahead, I'd like to set a little bit of context to what is the purpose of presenting, or what is the purpose of doing this meeting. आज यहाँ पे जरूरत क्या था कि why we have called you actually. See, the main thing is यहाँ पे all the participants who are present, they are of civil engineers, they are going to be civil engineers. Second year या third year या fourth year में होगा. So now after you pass out, what are your expectations from the industry? So are you going to find out job in a site? You are going to find a job in a cement company? There are actually hundreds and thousands of opportunities after you pass out from cement. Don't change, don't Gautam, keep on changing. I'll tell you when to change. So as there are hundreds of scopes, तो कहाँ पे जाना सही है, कहाँ पे जाना चाहिए? So usually this knowledge is not with the students. So I think Vijender ji, this is the 3rd session we are conducting from Dalmia. Yes, sir. It is 3rd. So we have already touched almost 200 of students from your college also. So अभी यहाँ पे college से pass out होने के बाद तुरंत what a student should do, he should either opt for studying in masters, in MBA or MTech or whatever it is, or they should search job. तो ये क्लैरिटी थोड़ा सा कम होता है. So this is the purpose what we thought कि थोड़ा सा टाइम आप लोग के साथ बिताओ to give you an insight कि what should we do or how to go ahead in future in your career. So before that, I'll give you a brief about myself.
My name is Arindam. I belong to Kolkata. I'm based out of Patna and looking for Bihar and UP in technical services in Dalmia Cement for last 6 years. I just completed my 6th years on 19th of August this year. So still, when I passed out in engineering, and after that I had options for going to site. So I was working with few of the sites, few of the prestigious projects in India for the initial 3 years. Then I joined a cement company, and then till now it is almost 17 years I am into cement. So the thing is, as a civil engineer, you will be getting a various exposures. As a civil engineer, कि सीमेंट में ही काम करना है, तो एक थॉट प्रोसेस होता है, तो सीमेंट प्लांट में सीमेंट बनाने का काम होता है. So that is usually not correct, because the one engineer who is placed in the plant, he is basically either metallurgical or chemical. He is not a civil engineer. Civil engineer जो plant में है, he is basically doing a maintenance job in plant. So there is no role of civil engineers, though no scope of civil engineers in manufacturing of cement. जो है that is again in QC, but again QC में वहाँ पे civil से ज़्यादा chemist का जरूरत है. So you find after you pass out, so there is actually any opportunity in cement? Yes, there are. कैसे? इंडिया में आज का दिन में जो भी मिस्त्री काम करता है, मोस्टली दे आर अनस्किल्ड. इंडिया के बाहर जो है, so they are skilled, they have a certification, they have gone through a test, they have gone through a particular course, then only after that they can work in a site. But इंडिया में ऐसा नहीं होता है. What happens? The laborers who are working in a site, they become upgraded to masons after a few years. The masons who are working in a site, they get upgraded to a contractor in 3-4 years. The contractors again get upgraded to even an engineer after 3-4 years. So in a site you may face कि ये contractor आपको बोल रहा है कि आप मुझे मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मैं इस लाइन में 20 साल से काम कर रहा हूँ, आप आए नया इंजीनियर पढ़ के क्या पढ़ लिए और समझ क्या. This is a very common thing you will find in India, but this is actually not happened outside India. इसका एक रीजन ये भी है. Now I'll come to cement, the product actually. जो प्रोडक्ट हम लोग दे रहा हूँ, नेक्स्ट गौतम. तो दिस इज बेसिकली ऐसा एक प्रोडक्ट जो बिना जांच का हम लोग इसको नहीं बता पाएंगे अबाउट इट्स क्वालिटी. फर्स्ट थिंग इज दिस इज नॉट अ रॉ मटेरियल, नॉट अ फिनिश प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल कस्टमर के लिए है, फिनिश प्रोडक्ट एक सीमेंट कंपनी के लिए है. तो दिस इज बेसिकली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. इट इज अ ग्रेट प्रोडक्ट जो एक पैकेजिंग में आता है, HDP और PP 50 kg का यूजुअली पैकेजिंग में आता है. एक बार प्लानिंग हुआ था जंबो पैकेजिंग, बट दैट वाज फॉर इन IS साइट्स. बट अदर देन यूजुअली व्हाइट सीमेंट छोड़ के ग्रे सीमेंट 50 kg का पैकेजिंग में ही आता है. नेक्स्ट. तो ये ऐसा चीज है जो हम लोग उसको देख के नहीं बता पाएंगे कि हाउ इज द क्वालिटी, उसको सूंघ के नहीं बता पाएंगे हाउ इज द क्वालिटी, उसको टेस्ट करके नहीं बता पाएंगे, उसको छू के नहीं बता पाएंगे, और ये कुछ बोलता भी नहीं. तो ये सीमेंट को जानेंगे कैसा कौन सा अच्छा है. यहाँ पे मान लो आई जस्ट स्पीक अ नेम इट, अमरजीत कुमार. अमरजीत, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? Amarjit, the name is visible on my screen. Can you please unmute? I'll ask you something. I'll request everybody to put their videos on mode because we may not be able to understand आप लोग साथ में है या नहीं. Okay, Amarjit might be busy somewhere. So any student, can you please unmute yourself? Please put your video on and unmute. Can I speak to somebody? Nobody is interested, I think. Yes, sir. Yeah. Good afternoon. Who is speaking? Kana Pandey, sir. Sorry? Kana Pandey, sir. Good afternoon. Kana. Okay, Kana. Good to see you. Kana, तुम्हारा घर कहाँ पे है? सर भभुआ, कैमूर बिहार. भभुआ में. वहाँ पे मान लो तुमको घर एक मंजिल का है, वो दूसरा मंजिल का करना है, ठीक है?
तुम्हारा कौन सा ईयर है? यू आर इन Yes, sir, फाइनल ईयर? year, second year. Second year. No, sir, second year. You are in Second second year. Okay. Yes, sir. So abhi now you have already completed first year and in second year of engineering, so you must be knowing much about cement, material, bricks and everything. तो मान लो तुम एक सिविल इंजीनियर होने जा रहे हो 1 साल बाद और तुम्हारा घर पे दूसरा मंजिल का काम होने वाला है और एक डीलर के Yes, sir. सामने गया, तुम्हारे घर के सामने ही एक डीलर है जिसके पास सारा ब्रांड अवेलेबल है, तो तुमको अभी तुम्हारे घर के लिए कोई ब्रांड चुनना है, तो तुम अभी कौन सा चुनोगे? सर ऑब्वियसली मार्केट में पता करेंगे पहले कौन ब्रांड सही है। मार्केट में पता करोगे? वेल, तो बीइंग अ सिविल इंजीनियर तुम मार्केट में जाके पता करोगे कि कौन सा ब्रांड सही है और किससे पूछोगे जो सिविल का बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। Yes, sir. तुम किसको जाके पूछोगे मार्केट में, कहाँ पे पूछोगे? तुम जिसको पूछोगे वो क्या सिविल इंजीनियर है? सर दुकान पे मतलब जिसका सेलिंग रेट हो। तो No, sir. दुकान पे जाके पूछोगे तो दुकान वाला तो उसको तो पढ़ाई किया ही नहीं, वो तो इंजीनियरिंग में नहीं मालूम है उसको, तो वो सीमेंट के बारे में क्या बोल देगा? सिविल का नहीं सर, इलेक्ट्रिकल का है। तो नाउ वेल थैंक यू काना। तो नाउ द थिंग इज एज वी आर ऑल अ सिविल इंजीनियर्स, तो अभी हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जानना और जाके मार्केट में लोगों को बताना कि कौन सा लेना चाहिए नहीं चाहिए। एक आम आदमी और एक आम दुकानदार के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो बोल देगा कि वो ये सीमेंट अच्छा है। वो कौन सा बोलता है अच्छा है? क्योंकि जो उसको प्रॉफिट ज्यादा देता है, उसके पास जिस सीमेंट का मार्जिन ज्यादा है वो बोल देगा आप ये ले जाओ, ये बढ़िया है, बिकॉज ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट सीमेंट। Am I correct? So in this case, so it is your responsibility to understand materials, कोई भी materials, not only cement, तो कोई भी material के बारे में जानकारी लेना और let the people aware, let the market aware, let the masons, contractors and customers be aware from yourself. You should make them aware. Next. So now as a cement brand, as a cement quality, so what we make is the main thing. There are दो चीज है, first thing is concrete and second is mortar. तो ये दो चीज यूजुअली हम लोग सीमेंट से बनाता हूँ। कंक्रीट मतलब जहाँ पे फाइन एग्रीगेट्स के साथ साथ हम लोग कोर्स एग्रीगेट भी देता हूँ, और मोर्टर मींस सीमेंट एंड सैंड मिक्स। तो मैक्सिमम जो काम होता है दैट इज कंक्रीट। सो आई विल डिस्कस अबाउट कंक्रीट फर्स्ट। सो अबाउट कंक्रीट, व्हेनेवर वी आर मैन्युफैक्चरिंग कंक्रीट, सीमेंट वहां पे जरूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली कंक्रीट का क्वालिटी या कंक्रीट का परफॉर्मेंस दैट इज लीस्ट डिपेंडेंट ऑन सीमेंट। यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है, आई रिक्वेस्ट गौतम इसको फुल स्क्रीन कर दो तो इट विल बी बेटर विजिबल, राइट? सो नाउ यू कैन सी इन द स्क्रीन कि कंक्रीट परफॉर्मेंस इज लीस्ट डिपेंडेंट ऑन सीमेंट. It is mostly dependent on what construction practices. Then it comes to admixture if it is used, then to aggregates, then water, and last is cement. So construction होने के टाइम कंक्रीट कैसा होगा तो सीमेंट के ऊपर बहुत कम डिपेंडेंट है, क्योंकि सीमेंट एकमात्र चीज नहीं है कि उसके ऊपर कुछ हम लोग बोल सकते हैं। पर कंक्रीट में कुछ अगर गड़बड़ हुआ तो हम लोग सीमेंट वाले को ही बुलाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारा जो चार्ट है इसमें खाली एक ही चीज ब्रांडेड है, दैट इज सीमेंट, बिकॉज एडमिक्सचर इज नॉट यूज्ड रेगुलरली। तो सीमेंट एक ब्रांडेड है, इसीलिए हम लोग सीमेंट को ही बुलाता हूँ। और अक्सर कोई भी लोग सीमेंट को ही दोष देता है, ये सीमेंट को ही अच्छा बोलता है। कोई अच्छा काम हुआ तो बोलता है सीमेंट अच्छा था, पर हो सकता है उस साइट में जो इंजीनियर था वो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस वो बढ़िया से किया था, फॉर्मवर्क बढ़िया था, उसने शटरिंग बढ़िया था, कवर ब्लॉक बढ़िया से दिया था, कोई गैप नहीं छोड़ा था, इसलिए काम अच्छा हुआ। हो सकता है वो सीमेंट के लिए अच्छा हुआ ही नहीं है। ये भी हो सकता है कोई काम खराब हुआ वो सीमेंट के लिए हुआ है, बट दैट चांसेस इज वेरी वेरी लेस, बिकॉज सीमेंट आज के दिन में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ये सारा ऑटोमेटेड प्लांट से होता है। दिस इज नॉट ओनली डालमिया, कोई सा भी सीमेंट आज के दिन में जो निकलता है वो कोई भी खराब नहीं है। देयर आर सम माइनर चेंजेस इन क्वालिटी, सो दैट इज एक्चुअली वी डू मिक्स डिजाइन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ गेटिंग द प्रॉपर मिक्स। तो ये होता है द इंपॉर्टेंस ऑफ सीमेंट। नाउ फॉर अ सिविल इंजीनियर व्हाट वी डू इज नेक्स्ट वी विजिट द साइट्स, और वहां पे जाके हम लोग एक्सप्लेन करता हूं कि आपका सीमेंट ये यूसेज प्रॉपर है कि नहीं।
तो यहाँ पे हम लोग का सिविल इंजीनियर्स का काम शुरू होता है। हम लोग आज के दिन में, मैं जो सुबह बोल रहा था ना, सॉरी थोड़ी देर पहले जो बोल रहा था कि क्या क्या हो सकता है एक सीमेंट कंपनी में, तो एक और हम लोग को यहाँ पे प्रोग्राम करने का कारण ये है कि वो विजेंद्र जी को मालूम होगा कि हम लोग का यहाँ पे एक और राज छुपा है कि हम लोग का यहाँ पे इंजीनियर्स का डिमांड बहुत होता है। वी कीप ऑन डूइंग रिक्रूटमेंट कैंपसेस, so we need engineers on regular basis. So the purpose of this seminar is to make you understand कि सीमेंट कंपनी में क्या होता है, एंड यहाँ पे कोई अगर इंटरेस्टेड है तो यू कैन ऑलवेज join us whenever the vacancy arises. So before that, तो I'll make you understand कि एक कंपनी में होता क्या है. So what is the role of a civil engineer in Dalmia Cement? Not only in Dalmia Cement, in exactly cement industry. So there are two different bifurcations of job. One is pre-sales and second is post-sales. Now if I come to pre-sales, so we'll be explaining to the customers कि आज का दिन में brand approval क्या है, what is the role of influencer awareness meet, because कोई भी एक आदमी जो सीमेंट लेगा तो उसके पहले उसको जानकारी होगा तभी तो वो लेगा। वो अगर सही नहीं है कौन सा खरीदना चाहिए तो फिर वो नहीं जाके चुन सकता है। अच्छा, वेल कैन आई हैव वन मोर स्टूडेंट? I request everybody to put their video on mode please, otherwise पत्नी बोर होगा तो सो जाएगा वीडियो ऑन ऑफ करके। Don't change। Any student please speak. कोई भी वॉलंटियर प्लीज, नाम बताओ आपका। यस सर। वीडियो ऑन विशाल आनंद। क्या नाम बताए? विशाल आनंद सर। विशाल, ओके विशाल। विशाल आनंद। आपके पास फोन कौन सा है? ओप्पो ए कौन सा? सर ओप्पो A83। ओप्पो A83 कब खरीदे? यस सर। सर क्या कॉन्फ़िगरेशन है? सर 3 GB रैम है, 2 GB रैम और 32 GB SSD, 32 GB इंटरनल SSD कार्ड ओके, और फिर एक्सटर्नल 64 GB है। प्रोसेसर कौन सा है? और फिर प्रोसेसर सर ऑक्टा कोर है सर प्रोसेसर। ओह ग्रेट ग्रेट एक्सीलेंट। तुम अभी कौन सा ईयर में हो? सर अभी सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में। सो यू नो वेरी गुड अबाउट योर फोन, दैट्स वेरी गुड। यस सर। Okay, now can you tell me anything about cement specification? सीमेंट में क्या क्या होता है? सीमेंट में सर उसे ग्रेड से देखा जाता है, उसको पहचाना जाता है कि वो आईएसपी ग्रेड होता है। फिर सर आईएसपी 53 ग्रेड होता है और सर ओपीसी शायद समथिंग होता है कुछ। अभी जो ब्लेंडेड सीमेंट हम लोग यूज करता हो तो उसका ग्रेडेशन क्या होता है? सर उतना नॉलेज नहीं है सर, इसके बारे में डिटेल नहीं किए थे हम लोग, क्लास चल रहा था तो उसी में थोड़ा मोड़ा सर नॉलेज था बस। ओके, तो तुम्हारा क्लास में 2 साल में तो कभी ओप्पो A83 के बारे में नहीं पढ़ाया था, पर यू नो वेरी गुड इन डिटेल्स अबाउट द स्पेसिफिकेशन। और जो तुम पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में स्पेसिफिकेशन आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरेस्ट, तुम्हारा दोष नहीं है। वी जस्ट वांटेड टू शेयर। थैंक्स विशाल फॉर ज्वाइनिंग वॉलंटरी। तो दिस इज अ बेसिकली लैक ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग को जानकारी तभी होगा जब हम लोग को इंटरेस्ट होगा उस चीज में। मैं फोन दिन रात उसमें व्हाट्सएप करते रहता हूँ तो मुझे वहां पे स्पीड स्लो हो जाता तो मैं पता करता हूँ कि क्या चीज होने से और स्पीड बढ़ेगा। तो सिमिलर इंटरेस्ट अगर हम लोग का सब्जेक्ट में अगर होगा तो वी विल लीड अ बेटर इंडिया। आज का दिन में हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन करता हूँ तो उसका क्वालिटी सही नहीं होता है। क्यों सही नहीं होता है? क्योंकि हम लोग उसमें दिमाग लगाता ही नहीं हो कि वो सही करना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर बन गया तो बन गया। अभी उसमें अगर कुछ भूकंप या कुछ ना हो, जब तक कुछ आदमी ना मरे, जब तक अपना कोई किसी का कुछ ना हो, तब तक हम लोग को दिमाग बत्ती नहीं जलता है कि हाँ कुछ देखना चाहिए। कहाँ पे तुम स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे? जब इंटरव्यू में जाओगे या कोई एग्जाम होगा तब उसको थोड़ा रट्टा मारोगे, अच्छा ये था बस हो गया। तो वो काम अगर ऐसे हम लोग काम करेंगे तो वी विल बी एक्चुअली मेकिंग आवरसेल्व्स अ लूजर। तो यहाँ पे जो दो बाइफर्केशन है, प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स, यहाँ पे जो 2 नंबर पॉइंट है दैट इज बेसिकली एन अवेयरनेस टू द इन्फ्लुएंसर। जो अभी पहले बोला था अमन बोला था मोस्ट अभी
नहीं काना बोला था राइट, कि मैं मार्केट से पता करूंगा। तो मार्केट में कोई नहीं है बताने के लिए कि ये सीमेंट कैसा है। तो वी आर द वन हु शुड मेक देम एक्सप्लेन कि ये ब्रांड ये क्वालिटी है और ये सीमेंट आपको इसीलिए लेना चाहिए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ब्लेंडेड सीमेंट का ग्रेडेशन 53 43 नहीं होता है। देयर इज अ सिंगल ग्रेडेशन फॉर ब्लेंडेड सीमेंट, दैट इज 33 ओनली। So these are the things we make the influencers aware about the specification और जो भी latest development होता है। पोस्ट सेल में क्या होता है कि we give the customer services। एक ढलाई में जाके हम लोग वहाँ पे दिखाता हो कि क्या क्या जरूरत है। ढलाई शुरू करने के लिए पहले वहाँ पे कवर ब्लॉक देना चाहिए, मास्टरिंग देना चाहिए, लैब्स प्रॉपर होना है। लैब्स का मतलब क्या है, लैब्स अगर नहीं दिया तो बाद में ढलाई खोद के भी हम लोग उसको लैब्स वेल्डिंग करके नहीं डाल सकता। एक बार बन गया तो बन गया। तो देयर आर सेवरल थिंग्स व्हाट वी मेक द कस्टमर्स अंडरस्टैंड, और जहाँ पे हम लोग वी नीड सिविल इंजीनियर्स एंड वी नीड प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर्स, जहाँ पे हम लोग उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्निकल सर्विसेज एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज व्हाट वी हैव इन डालमिया। So I'll request again Gautam to take forward the session. Thank you for listening patiently. Yeah, Gautam, please go ahead. Yes, sir. Thank you, sir. These are some glimpse of raw materials on a site, जो कि हम लोग करते हैं अपने साइट्स पे। जब भी हम साइट्स पे जाते हैं, सबसे पहले अपने को एज एन इंजीनियर अपने को जो भी कॉन्क्रीटिंग हो रही है या जो भी मोटार बन रहा है उसकी प्रोपोर्शनिंग और उसके रॉ मटेरियल्स चेक करना चाहिए, जिसमें एग्रीगेट्स, सैंड और सीमेंट बैग्स के साथ साथ पानी तक हम लोग चेक करते हैं कि वो वाटर या जो भी प्रोडक्ट है वहाँ पे वो यूज़ करने लायक है भी या नहीं है। अगर यूज़ करने लायक नहीं है तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप इसे आइदर रिप्लेस कीजिए या फिर उसको किस तरीके से आप टेस्ट करके मिनिमाइज कर सकते हैं, उसकी हम लोग उनको सलाह देते हैं। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से स्लैब कास्टिंग के लिए जो प्रिपरेशन होती है, जिसमें शटरिंग और रेनफोर्समेंट बाइंडिंग होती है, उसको कैसे चेक किया जाता है, क्या क्या प्रॉपर मेजर्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। अगर उनके जो शटरिंग की गई है उसकी प्रॉप्स किस तरीके से बंधे हैं, कितने डिस्टेंस पे बंधे हैं, उनके सपोर्ट्स कैसे हैं, वर्टिकल फ्लैट्स हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं ताकि उनके स्ट्रक्चर में जो भी डिफॉल्ट रहती है, मैनुअल फॉल्ट रहती है, उसको हम लोग रिमूव कर सकें और उनके कंस्ट्रक्शन को बेहतर दे सकें। सुपरविजन ड्यूरिंग कास्टिंग है ये। हम लोग स्लैब कास्टिंग के जरिए भी बहुत सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। जब भी आप साइट्स पे जाएंगे तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ढलाई के दिन उसकी प्रोपोर्शंस देखनी होती है कि आपके जो कंक्रीट हो रही है, जो रिक्वायर्ड आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, वो उसके हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से वो मटेरियल बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट करनी होती है। जो आप अलग अलग टेस्ट मेथड जो होते हैं साइट्स पे, जिसमें आप स्लम टेस्ट कर सकते हैं, बॉल टेस्ट कर सकते हैं, क्यूब्स बना के टेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने साइट्स पे। इसके साथ साथ कवर ब्लॉक्स और मोबाइल टेस्टिंग वैन की सर्विसेज डालमिया सीमेंट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। कवर ब्लॉक्स आप सभी जानते होंगे, एज एन स्टूडेंट हम लोग रेनफोर्समेंट को डायरेक्टली शटरिंग पे नहीं रखते हैं, इसको उठा के कुछ उसकी मिनिमम क्लियर कवरेज होती है जो अपने को रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करनी होती है। अदरवाइज उसको रेनफोर्समेंट में कोरोजन वगैरह हो सकता है, इसलिए हम लोग उसको बचाने के लिए हम लोग उसको क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं। और वो क्लियर कवर चूंकि जनरली पहले गिट्टी यूज करते हैं जिसकी साइज एक जैसी नहीं होती है और वो आगे चल के प्रॉब्लम करता है, अलाइनमेंट डिस्ट्रैक्ट होती है उसकी वजह से। तो इसकी जगह आज के समय में कंपनियां स्टैंडर्ड साइज की जो 20 mm होती है उसकी आपको कवर ब्लॉक्स प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, ताकि उनके कंस्ट्रक्शन और बेहतर हो सके। इसके अलावा हम लोग हमारी टेक्निकल वैन की सर्विसेज हैं जो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारी सारी मशीनरी लगी हुई है जो आपके साइट पे प्रोडक्ट की टेस्ट करती है और आपके साइट पे ही हम रिजल्ट दिखाते हैं कि आपको जो कमिटमेंट किया जाता है डालमिया सीमेंट कंपनी की तरफ से वो हम सेटिस्फाइड फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप एज एन इंजीनियर अपने टेक्निकल सर्विसेज आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे अपने साइट्स पे, जिसपे ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग मेसन्स के लिए, मिस्त्री भाइयों के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा मेसन्स के हेल्थ चेकअप कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं। मेसन वर्कशॉप के जरिए हम लोग बहुत सारे मेसन्स को इंटरेक्ट करते हैं और उनको नए नए डेवलपमेंट्स के बारे में बताते हैं।
साथ ही साथ राजमिस्त्री सम्मेलन करते हैं, मिस्त्री लेवल पे बहुत सारी चीजें हम लोग एक्टिविटीज करते हैं। आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। इसके साथ साथ मैसन लॉयल्टी प्रोग्राम बोल के हमारी कंपनी एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलाती है जो हमारे कस्टमर्स और इन्फ्लुएंसर के लिए होती है। इसके आगे हम लोग जब भी देखेंगे सीमेंट इंडस्ट्री सिनेरियो की अगर बात करते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ किस हिसाब से डे बाय डे हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी प्रीवियस स्लाइड्स में सीमेंट आज के समय में मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट बन चुका है। तो आगे भी हम देखेंगे सीमेंट इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके ग्रोथ की अगर बात करते हैं, CAGR जो आप ग्रोथ देख रहे हैं 9.7% का, ये प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट मिलियन टन से आप लोग देख पा रहे हैं। ये ग्रोथ इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 17 तक में आप देख पा रहे हैं 7 से 17 में 9.7% का ये ग्रोथ हुआ है। सीमेंट इंडस्ट्री इंडिया ग्लैंस में अगर आप देख पा रहे हैं तो सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मार्केट है हमारा वर्ल्ड में, डोमिनेटेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। इसमें जो भी आप देख पा रहे हैं 97% लाइज इन प्राइवेट सेक्टर पे है। हमारे देश में जो भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो अधिकतर प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती है। अराउंड 70% शेयर ऑफ टोटल प्रोडक्शन 20 कंपनियों के पास ही है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो हाईएस्ट शेयर ऑफ लार्ज प्लांट्स में है। लार्ज प्लांट जो भी आप देख पा रहे हैं, जैसे बड़े प्लांट जितने भी बड़े ब्रांड होते हैं उनके बड़े प्लांट्स होते हैं वो 224 लार्ज सीमेंट प्लांट हैं, जो लगभग प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर बात करें उनकी तो 370 मिलियन टन पर ओवर का है और 350 मेनी प्लांट्स से कंट्रीब्यूट करते हैं। रेस्ट 25 मिलियन टन ही वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन इन साउथ एंड वेस्ट की अगर बात करते हैं तो टोटल 244 लार्ज सीमेंट प्लांट्स हैं। 77 आर सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ओनली, राजस्थान एंड तमिलनाडु। क्वालिटी कंट्रोल की बात की गई थी। मॉडर्न एनालाइजर के जरिए कैसे क्वालिटी कंट्रोल करते हैं उसकी अगर बात करें तो आप देख पाते हैं सीमेंट केमिकल एनालिसिस एंड XRF टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजीज और आपको एनालिसिस वगैरह आपको आने वाले समय में पढ़ाई में भी आप देखेंगे। जो अभी आप स्लाइड्स में देख पा रहे हैं तो ज़्यादा आपको रिलेट कर पाएंगे उन दिनों में जब भी आप पढ़ेंगे। इसके अलावा ये CTA मशीन है जो आप सभी ऑलरेडी देख सकते हैं अपने लेबोरेटरी में, आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर आप लोगों ने अभी ये चीज़ नहीं देखा है तो आने वाले समय में हो सकता है नेक्स्ट ईयर में आपकी ये सब्जेक्ट में ये चीज़ आएगी, जिसमें हम लोग क्यूब ब्लॉक्स बनाते हैं और उसकी टेस्ट करते हैं, उसको तोड़ के देखते हैं कि उस सीमेंट की क्या स्ट्रेंथ है, उस कॉन्क्रीट की क्या स्ट्रेंथ है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एश्योरेंस जो होती है सीमेंट मोटार क्यूब्स में मिनिमम 33 MPa और अबाउट 53 MPa इन डालमिया PPC और PSC में हम आपको एश्योर करते हैं। कंक्रीट की अगर बात करते हैं तो इट्स एन इमेजिन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड विदाउट कंक्रीट। आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड विदाउट कंक्रीट कैसा था। पहले की रोड आप देख पा रहे हैं और आज की रोड आप देख पा रहे हैं जो कंक्रीट से हम लोग इस रोड को हम यूज करते हैं, और पहले चूंकि कंक्रीट नहीं थी तो आप देख पा रहे हैं रोड की स्थिति। इसके साथ साथ वर्ल्ड विद कंक्रीट विदाउट कंक्रीट विल बी विदाउट पीस। अगर कंक्रीट नहीं होता तो इस तरीके की स्ट्रक्चर जो आप आने वाले स्लाइड्स में भी देखेंगे ये इनके बिना, कंक्रीट के बिना ये पॉसिबल होता क्या? बिल्कुल नहीं। तो कंक्रीट का एक अहम योगदान है पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट में, और कंक्रीट को आज के समय में सेकंड लार्जेस्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ऑन अर्थ आफ्टर वाटर। पानी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट बन चुका है कंक्रीट। जर्नी ऑफ कंक्रीट की अगर बात करें तो 1908 ईस्वी में कंक्रीट होम्स की थॉमस एडिसन द्वारा डिजाइन किया गया था यूनियन न्यू जर्सी में। इसके साथ साथ 1930 में रेडी मिक्स की फर्स्ट लोड स्टार्ट हुआ था मेरीलैंड में। इसके अलावा 1915 में कलर कंक्रीट की यूज की गई थी। 1936 में होवर डैम की
ये डेवलपमेंट देख पा रहे हैं कंक्रीट। स्क्रीन दिख रही ना? It is visible. ओके। Please. जर्नी ऑफ कंक्रीट के आप स्लाइड्स देख पा रहे हैं। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो बिना कंक्रीट के पॉसिबल नहीं थे। कुछ जर्नी है कंक्रीट की, वो आप स्लाइड्स पे देख पा रहे हैं। रेनफोर्समेंट, कंक्रीट एनग्रेविंग, गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं जो साइट्स पे सही और गलत होते हैं, उसको अपने को करेक्ट करना होता है। कुछ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हैं जो आप देख पा रहे हैं, आप देखिए उसे। लॉट्स ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ, किस तरीके से अगर प्रॉपर मिक्सिंग और कॉम्पैक्शंस नहीं होते हैं तो किस तरीके से स्ट्रक्चर फेल होते हैं, डिजाइन लोड से ज़्यादा हो जाने पे फेल होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। ये टेस्टिंग के लिए है कि आप किस तरीके से कंक्रीट जब बन रहा होता है उस समय आप कंक्रीट को कैसे टेस्ट कर सकते हैं वॉइड टेस्ट के जरिए। और इन ऑफ कंक्रीट सेग्रीगेशन, जो हम लोग कंक्रीट की हाइट से गिराते हैं उसमें सेग्रीगेशन नहीं आया, उसके लिए जो प्रिवेंशन होते हैं वो सारी चीज़ें प्रॉपर मेथड होती है, तो प्लेसिंग की वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। ये साइट्स पे इस तरीके से आप देख सकते हैं प्लेसिंग होती है कंक्रीट की, जो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से प्लेस किया जाता है। ये सारी चीज़ें अपने को करेक्ट करानी होती है एज एन टेक्निकल ऑफिसर्स। मैंने बताया प्रॉप्स के बारे में भी, हम लोग प्रॉप्स भी चेक करते हैं, उसके बेस किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। तो आपको स्लाइड्स में देख पा रहे हैं बैड वर्क और गुड वर्क आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाया गया है कि क्या सही और क्या गलत है। फॉर्मवर्क अगर होता है जिसमें बहुत सारे कैपिंग्स होते हैं, जिसमें ब्लीडिंग की चांसेस बढ़ जाती है, तो इस तरीके के वर्किंग को भी अपने को रिमूव करना होता है, उसको मिनिमाइज करना होता है। ये सारे करेक्टिव मेजर्स होते हैं जो अपने को साइड्स पे लेने होते हैं। प्रॉपर मेथड फॉर्मवर्क का जो आप देख पा रहे हैं अभी, इस तरीके के फॉर्मवर्क को प्रॉपर हम कह सकते हैं। रॉन्ग मेथड ऑफ कोटिंग कवर, ब्रेक वर्क, वॉल प्लास्टर। थैंक यू। और अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे कॉलेज अथॉरिटी से, प्रिंसिपल सर एंड कोऑर्डिनेटर सर, एक बार आप अपनी तरफ से कुछ बच्चों को पूरी इस मीटिंग के बारे में कुछ डिस्कस कर लीजिए। थैंक यू। Thank you, sir. On the behalf of Bakhtiarpur College of Engineering, I am extremely thankful to the Arindam sir for your nice and informative presentation, and also Gautam Pathak sir who can deliver their lecture. डालमिया सीमेंट इज लाइक दैट कि हमेशा हम लोग के साथ रहे हैं और हमेशा अभी तक 2 लेक्चर प्रीवियसली भी हो चुके हैं अरिंदम सर द्वारा। तो अरिंदम सर के लिए सो वेरी मच थैंकफुल, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू अरिंदम सर बिकॉज ही इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस एंड इन कमिंग डेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। In coming days, sir also will recruit our college. So thank you so much, sir, and thank you to all the participants for patiently listening the webinar. We are sharing the feedback link so that you can fill it the feedback form. Vijayanti, one more request. We can have a session of question answer key if somebody wants to ask us something. Yes, sir. कुछ अगर किसी को पूछना है तो we are there. किसी को पूछना है कुछ, you can write in the chat box. Sir will answer your queries. If
any participant, any student have any question, you can raise to, you can write in the chat box. Okay, if there are no questions, so you can use the link for the feedback. And thank you, thank you students. Sir, Thank you. one question from Mohit Singh. How you see the future of cement in this era? Future of cement in this era. Yes, sir. Okay, era means. Sir, I wanted to ask you that in this present time, as climate change is approaching, so actually cement is non-biodegradable as we know. So we are actually doing. There are a lot of changes, and there are constant changes in the quality of cement, and this is actually Yes, not sir, but visible. Yeah, I'll brief you. Actually, the changes are not exactly visible in the packaging. So whatever it was available, say 50 or 100 years back, or even 20 years back. So there are changes, but the changes are not visible. So how can you visualize the changes, and what are the requirements basically? You can see one thing. So you stay in Patna only? Yes, sir, I see in Patna. Okay. So now if you go back around say 5 to 10 years, so have you seen any of the high-rise structures in Patna? Maybe no, or maybe one or two, or very less. But nowadays, if you come to any of the big cities like Kolkata and Bombay, so you'll find that G+10, G+20 buildings are very common. So how it is possible? So this is basically possible because of the cement, the development and the advancement of cement, which has made this possible. But we cannot see the quality of cement. We cannot judge the quality of cement by seeing the bag. So we need to have a standard set of tests, what we do in the labs, to understand. So what is the advancement in cement? But what we can assure you, in this era, there are a lot of changes done. You must have heard of the name, the Portland Composite Cement, that was again launched in this era only, and there are a lot of things to come. Thank you. Thank you, sir. Next question is Dalmia cement is used in a government construction? Yes, yes. We also do export a lot of cement to Middle East. ये सारा जो अभी शुरू में दिखा था, ढोलासरिया ब्रिज, द डैम्स, ये मेट्रो रेलवेज, गवर्नमेंट, ये सारा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है. Next question from Aditya Kumar. How do we make concrete environmental friendly? Concrete is always environmental friendly, because if we were not using concrete, so that was making environmental unfriendly. So whenever we were using concrete, that means it is an environmental friendly structure only. No more questions. So I don't see any other questions right now in the chat box. One question from Ronak Raj. सीमेंट प्रॉपर होने का क्या मेजर स्केल है और कैसे चेक कर सकते हैं? How to measure the cement proper? Cement testing का, there are several parameters. The cement is tested for physical and chemical parameters. So if you go through any of the textbooks, it is very clearly mentioned कि normal consistency है, IST है, FST है, setting time है, strength है. Those are very well defined. So cement का क्या क्या testing है, on the scales are also measured as per IS code होता है test. So you go through your textbook, it is very clearly defined. Don't worry. Ronak. It seems that he has not gone through the cement textbook yet. Okay. Okay. Great. Good to hear the questions. Over to Vijender ji. Thank you, sir. You have answered all the questions, and
the session is a very benefit to the upcoming civil engineers of our institute. Hope for the better, and we're very grateful to you and your organization for always helping to our institute. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, students. Thank you. Take care. Bye. Thank you, sir. Participants, please fill the feedback form and leave the meeting room. Thank you, sir.